welcome to this session, student. This time we are going to discuss human health and disease, lecture 2, human health and diseases. In our previous class, so we have started discussing about common diseases in human. Already we have covered typhoid, pneumonia, common cold. Okay, these diseases we have discussed already. So, in today's class, first we will do one question here. First we will do a question. Question is like this. Mind affect A, affect B, and both together affect C, and C maintains health. Okay. So mind is influencing A and B are maintaining C, and C is maintaining health. So your work is to identify what are these A, B, C. What is this A, B and C? So from previous class, if you attend previous class, then you can answer this question, right? So mind influences neural system and endocrine system. क्या आंसर लेना चाहिए? Mind influences neural system as well as endocrine system, and both neural system and endocrine system act on immune system. So if any problem occur in neural system or endocrine system, then effect can be seen on immune system. So both A and B are responsible for immune system. मतलब ये हुआ आपका न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करेगा and maintain immune system, and immune system maintain your health. Okay, that's why neural system is very important. You are thinking, how you are thinking. So if you are thinking positively, then your immune system also becomes stronger. अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा. So first positive thinking is needed to maintain a good health. Okay, so this is what we have done last class. Now we will continue the common diseases in human. ये क्वेश्चन के बाद common diseases human continue करेंगे. Last time we have completed ringworm disease. Last time we have discussed about common cold. So today first we are discussing malaria. आज का मेन टॉपिक रहेगा मलेरिया. आज की मेन टॉपिक है. सो सबसे पहले ये व्हाट इज द टाइप ऑफ डिजीज हियर. मलेरिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिसीज. पैथोजन का नाम बताना है आपको. सो मलेरिया इज प्रोटोजोआन डिसीज. मलेरिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिसीज? इट इज ए प्रोटोजोआन डिसीज, राइट? And pathogen, what is a pathogen which causes malaria? Plasmodium vivax, one pathogen. Another pathogen, Plasmodium ovale. Plasmodium malariae. And one more pathogen, Plasmodium falciparum. So that means there are four species of Plasmodium which are causing malaria disease. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Out of this, Plasmodium falciparum causes very severe type of malaria. If not treated, Plasmodium falciparum causes a malignant malaria which may be fatal.
डेथ भी हो सकती है। मतलब सबसे सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया जो सीवियर मलेरिया है, सो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। मैलिग्नेंट मलेरिया बोलेंगे आप उसको, मैलिग्नेंट मलेरिया। और सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया caused by Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum। ओके, बहुत ही ज्यादा सीरियस केस है ये मैलिग्नेंट मलेरिया। इन सीरियस केसेस में डेथ भी हो सकती है, मे बी फैटल। मैलिग्नेंट मलेरिया बहुत ही सीरियस है। नेक्स्ट, आफ्टर टाइप ऑफ द डिजीज, आफ्टर पैथोजन नेम, next is location of the pathogen in human body, where this pathogen is located, location. So this pathogen is located in liver and RBC। मेनली प्लाज्मोडियम जो है दो प्लेसेस में अटैक करता है, लीवर को फिर आरबीसी को। लीवर एंड आरबीसी आर द टू टारगेट साइट्स। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा ये? मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है? थ्रो द वेक्टर, थ्रो द वेक्टर फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रो होगी ये डिजीज, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रो, मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है सिम्टम्स की। जैसे मैं सिम्टम्स जैसे बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सिम्टम्स। इफ आई आस्क फ्रॉम द प्रीवियस क्लास विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय नाजल कंजंशन, नाजल कंजेशन है और रनिंग नोज है, वाटरी आईज है, टायर्डनेस है, फीवर है, हेडेक है, ये कौन से डिजीज में हो रहा है? कॉमन कोल्ड कॉज बाय द राइनोवायरस। यू आर करेक्ट। सेम ऐसे ही और एक डिजीज एग्जाम में ऐसे सिम्टम देके पूछेगा ये कौन से डिजीज में होता है। विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड हाई फीवर, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन। बताइए, टाइफॉइड डिजीज में हुआ था। मोड ऑफ इन्फेक्शन यहां पे समझ गए, मलेरिया इज स्प्रेडिंग थ्रू द वेक्टर, वेक्टर मतलब डिजीज स्प्रेडिंग एजेंट, डिसीज स्प्रेडिंग एजेंट। मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। सिम्टम क्या है देखिए, सिम्टम्स क्या हैं इसके? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डिजीज? सिम्टम्स क्या हैं? सो यहां पर जो मेन सिम्टम है मलेरिया में, रैप्चरिंग ऑफ आरबीसी, रैप्चरिंग ऑफ आरबीसी रिलीजेस ए टॉक्सिक पिगमेंट, रिलीजेस ए टॉक्सिक पिगमेंट। What is a toxic pigment released during malaria disease? Hemozoin, 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 which causes frequent fever with chill, frequent, which causes frequent fever with chill। तो मलेरिया में सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए, जैसे ही कोई मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट करेगा एक पर्सन को, सो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम जो होता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इन केस ऑफ ह्यूमन इज स्पोरोजॉइट्स। Sporozoites are released by the mosquito into the blood, and from there the sporozoites go to the liver, from the liver go to the RBC, okay,
and destroy the RBC. RBC destroy हो रहे हैं, rupturing of RBC, rupturing of RBC. जैसे आरबीसी रैप्चर हो रहे हैं वहां पर एक पिगमेंट निकल रही है हीमोजोइन बोलकर, एंड दिस हीमोजोइन कॉजेस फ्रीक्वेंट विथ चिल, फ्रीक्वेंट फीवर विथ चिल, बुखार आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का और साथ ही साथ सर्दी लगेगी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंट फीवर विथ चिल इन एवरी 3 to 4 days, हर 3-4 दिन में होगा इसे, इन एवरी 3 to 4 days. सो एग्जाम में आवर्स में भी दे सकता है, 72 आवर्स भी बोल सकते हैं, हर 72 आवर्स के बाद ऐसे होगा, हर 72 आवर्स के बाद फीवर आ गया, चिल आ गया, फिर 72 आवर्स के बाद फीवर और चिल. दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया. बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी और फीवर भी आ जाएगा. ओके, क्लियर है ना ये सब सारी चीजें? So location of the plasmodium, where plasmodium is located in human. In human, plasmodium is located in RBC as well as in liver. ये दो जगह पे होता है. प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है. प्लाज्मोडियम is what type of parasite? Plasmodium is digenetic parasite. That means it requires two hosts. It requires two hosts to complete its life cycle. दो host चाहिए. That means it requires two hosts. It requires two hosts to complete its life cycle. To complete its life cycle. What are the two hosts? Number one, what is required? Humans, और second है female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. So plasmodium is what type of parasite बोल के पूछेगा. It is a digenetic parasite. डाइजेनेटिक पैरासाइट मींस इट रिक्वायर्स टू होस्ट, दो होस्ट चाहिए इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटो. सो इन एनसीईआरटी बुक यू कैन सी ए वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम गिवन फॉर प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है. वो डायग्राम देख के हम जो है फ्लो चार्ट बनाएंगे. Through that diagram, we can write the flow chart to understand the complete life cycle of malaria. Before that, एक नोट लिखेंगे यहां पर. एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में सुने हैं आप लोग, बहुत ही फेमस होती है एंटी मलेरियल ड्रग, Q9 बोलते हैं. Q9 एंटी मलेरियल ड्रग इज Q9. ठीक है, याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में. एंटी मलेरियल ड्रग Q9 है. ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस Q9 ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना officinalis. Cinchona officinalis plant. Cinchona officinalis plant होता है एक, उस प्लांट से निकालते हैं ये ड्रग, Q9 ड्रग. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. देखिए पॉइंट नोट करेंगे सब लोग. नाउ वी विल गो टू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे मैं बताया. सो वन मोर नोट यू कैन राइट. infective stage of plasmodium in humans is called sporozoites. जो
इन्फेक्टिव स्टेज है इनके, स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं उनको, स्पोरोजॉइट्स. सो प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन बॉडी इन विच फॉर्म? स्पोरोजॉइट फॉर्म. ठीक है. एंड दोज स्पोरोजॉइट्स कम फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनोफिलिस मस्किटो के थ्रू आ जाते हैं वो. लेट अस राइट द फ्लो चार्ट जैसे मैं बताया. सो आफ्टर दिस एंटी मलेरियल ड्रग Q9, now we will go to the life cycle of plasmodium. हेडिंग बनाएंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. फर्स्ट व्हाट हैपेंस, सबसे पहले क्या होगा? फीमेल एनाफिलिस मस्किटो बाइट्स टू ह्यूमन. फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो बाइट्स टू ए ह्यूमन. एक फ्लो चार्ट बनने वाला है, लंबा एक लॉन्ग फ्लो चार्ट बनने वाला है. आपके नोटबुक में ड्रॉ कीजिए कंप्लीट वन पेज के ऊपर, कंप्लीट एक पेज के ऊपर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. सेकंड क्या होगा? स्पोरोजॉइड्स इंजेक्टेड. स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड. जैसे ही कोई मस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो आके बाइट करेगा, स्पोरोजॉइड्स ब्लड में रिलीज हो जाएंगे. स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड. अब क्या करेगा ब्लड? क्या करेगा? देखिए, ब्लड कैरी देम इनटू द लीवर. ब्लड कैरी देम इनटू द लीवर. लीवर को ले जाएगा स्पोरोजॉइट्स को. ठीक है. अब वहां पे लीवर में क्या होगा? इनसाइड द लीवर पैथोजन मल्टीप्लाई asexually, damaging, bursting large number of liver cells. देखिए, बुक में एनसीईआरटी में क्या एक डायग्राम बनाया है. पहले एक मस्किटो आएगा, एनोफिलिस मस्किटो बाइट करने के बाद स्पोरोजाइट्स ब्लड में रिलीज हो गए. वो ब्लड सीधा उसको लीवर को लेके जाता है. ये रहा लीवर के अंदर सेल्स रहेंगे, राइट? दीज आर द लीवर सेल्स. फर्स्ट स्पोरोजॉइट्स कम इनटू द लीवर सेल. आप डायग्राम मत ड्रॉ करो, जस्ट समझने के लिए मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द लीवर सेल एंड दिस इज द स्पोरोजॉइट, या इन्फेक्शियस स्टेज बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे. नाउ इनसाइड द लीवर सेल दिस पैथोजन इज मल्टीप्लाइंग. पहले एक पैथोजन था, अभी मल्टीप्लाई होकर ये 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, थाउजेंड्स हो जाएंगे. पैथोजन मल्टीप्लाई होंगे एंड फाइनली दिस लीवर सेल बर्स्ट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. ब्रेक होने के बाद उसमें से पैथोजन निकलेंगे बाहर, लाइक दिस कम आउट. सो लाइक दिस दे डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ लिवर सेल्स. ऐसे बहुत सारे लिवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे. नाउ यू गॉट दिस कंप्लीट. फीमेल एनाफिलिस मस्किटो बाइट्स टू ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स रिलीज हुए, स्पोरोजाइट्स लीवर को पहुंचेंगे. इनसाइड द लीवर सेल पैथोजन एंटर एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द लीवर सेल एंड डैमेज एंड बर्स्ट द लीवर सेल. ब्रेक हो जाएगा लीवर सेल. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर राइटिंग फ्लो चार्ट कंप्लीट. फिर क्या होगा? फर्स्ट लीवर को डैमेज करेंगे, देन दे अटैक
they attack RBC. They attack RBC. Burst RBC. फिर RBC को भी burst करेंगे. Burst RBC, releasing hemozoin. Hemozoin. RBC destroy होने से hemozoin निकलेगा. And question can be asked from this. Okay. Which toxic pigment is released in malaria which causes frequent fever with chill? Or you can ask another question like this. Malaria, in case of malaria, frequent fever with chill occur in every 3 to 4 days. Why? क्योंकि RBC destroy होते हैं. RBC burst हो रहे हैं. RBC break हो रहे हैं यहाँ पर in large number and releases hemozoin. In some of the RBC, the infected protozoan produces gametocytes. कुछ RBC तो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ RBC तो डिस्ट्रॉय हो गए. लाइक दिस पैथोजन RBC में मल्टीप्लाई हुए एंड सम ऑफ द RBCs आर डिस्ट्रॉयड. ओके, कुछ RBC भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट क्या होगा? In some of the RBCs, pathogen produces male and female gametocytes. किसके गैमेट्स बन रहे हैं? ये प्लाज्मोडियम के मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स. नाउ यू गॉट द कंप्लीट इमेज आपके सामने आ चुका है. थिंक करना है आपको. फर्स्ट दे डिस्ट्रॉय लीवर, देन दे डिस्ट्रॉय RBC, and when they destroy RBC, releases a toxic pigment. Which toxic pigment is released? Hemozoin बोल के pigment release होगा. And in some of the RBC, pathogen produces male and female gametocytes. मतलब RBC के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे. RBC के अंदर किसके गैमेट्स बनेंगे? पैथोजन प्लाज्मोडियम गैमेट्स आर फॉर्म्ड. एक में मेल गैमेट, एक में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, एवरीबडी क्लियर? दीज गैमेटोसाइट, अब ये गैमेटोसाइट्स, ये मेल गैमेट फॉर एग्जांपल, ये फीमेल गैमेट. नाउ दीज गैमेटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय अनदर मस्किटो. अभी यहां तक एक मस्किटो के थ्रू इतना सब हो गया बॉडी में. नाउ अनदर फीमेल एनाफिलीज मस्किटो कम्स एंड बाइट्स दिस इन्फेक्टेड पर्सन. ये पर्सन इन्फेक्टेड है क्योंकि इसके RBC में गैमेटोसाइट्स हैं. ओके, यहां पे लिखेंगे आप अनदर एनाफिलीज मस्किटो bites this infected person and ingest gametocytes, male and female gametocytes along with blood meal. जब ये ब्लड ले रहे हैं ना, तो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर मेल और फीमेल के गैमेट्स भी जा रहे हैं. इंजस्ट मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स. यस, अप टू दिस कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आना चाहिए, एक इमेज आना चाहिए. फीमेल एनाफिलीज मस्किटो एक पर्सन को बाइट करेगा, स्पोरोजाइट्स रिलीज होंगे. दोज स्पोरोजाइट्स गो टू लीवर, डिस्ट्रॉय लीवर सेल, then attack RBC and destroy RBC cell also and releases the toxic pigment hemozoin. जैसे ही hemozoin रिलीज होगा ब्लड में, पेशेंट को जो है फीवर विथ चिल हो जाएगी. एंड इन सम ऑफ द RBC, कुछ RBC डिस्ट्रॉय हो गए एंड कुछ RBC के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स रेडी हो रहे हैं.
And after the formation of gametes, another Anopheles mosquito bites this infected person, and while taking blood meal, while sucking blood from the infected person, gametocytes also enter into the mosquito's body, है ना, मस्कीटो के बॉडी में चले जाएंगे. फर्टिलाइजेशन कहां होगा यहां पर? अब वेयर फर्टिलाइजेशन आकर, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑकर इन मस्कीटो गट. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑकर इन मस्कीटो गट, ऑकर्स इन मस्कीटो गट. अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पर लिखा होगा मस्कीटो स्टमक, या किसी के बुक में होगा मस्कीटो इंटेस्टाइन. बट न्यू एनसीईआरटी में क्या किया है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑकर्स इन मस्कीटो गट बोल के लिखा हुआ है. फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा. वेयर फर्टिलाइजेशन इज ऑकरिंग, प्लाज्मोडियम फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन मस्कीटो बॉडी. वेयर गैमेट्स आर फॉर्म्ड. देखिए क्वेश्चन अगर आप लाइफ साइकिल समझेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द आरबीसी. एंड वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर इन मस्कीटो गट, मस्कीटो के गट में हो रहा है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. आफ्टर दैट मैच्योर स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट. मैच्योर फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे मैच्योर स्पोरोजोइट्स मूव फ्रॉम गट into the salivary gland of mosquito. ठीक है. स्पोरोजोइट फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजोइट्स बनेंगे एंड दोज स्पोरोजोइट्स मूव फ्रॉम गट. गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मस्कीटो. फर्टिलाइजेशन ऑकर इन गट. After that, sporozoite move from gut into the salivary gland of mosquito, and now that mosquito bites another person. अब ये mosquito फिर और एक person को bite करेगा. Again releases sporozoites into the blood, and those sporozoites go to the liver, damage liver, then attack RBC, then damage RBC, and then in some of the RBC they produce this male gametocyte and the female gametocytes. फिर एक mosquito आएगा, along with the blood meal take the gametocyte. फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गट के अंदर, मस्कीटो के गट के अंदर. and again after fertilization sporozoites ready होंगे and those sporozoites go and stored into the salivary gland of the mosquito. This mosquito is ready to infect another person. Like this the life cycle of Plasmodium. So in case of human, Plasmodium is multiplying by what method? In case of human, Plasmodium is multiplying by means of asexual reproduction. And the same Plasmodium, in case of female Anopheles mosquito, reproduces by means of sexual reproduction. मतलब प्लाज्मोडियम के हम यहां पे लिख सकते हैं दो टाइप के रिप्रोडक्शन कर रहा है प्लाज्मोडियम. Plasmodium is reproducing asexually in case of human and sexually in case of mosquito. Plasmodium multiplying asexually in humans and sexually in Anopheles mosquito. In Anopheles mosquito. This is very very important. लीवर में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और आरबीसी में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लाज्मोडियम का, दैट इज कॉल्ड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनोफिलिस मस्कीटो में होगा.
क्योंकि फर्टिलाइजेशन जहां होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ह्यूमन में हुए. प्लाज्मोडियम के गैमेट्स कहां पर रेडी हुए? आरबीसी के अंदर. बट दैट इज आल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? Sexual reproduction, fusion of gametes is occurring in mosquito gut. Therefore, we are writing sexual reproduction in Anopheles mosquito. So we can divide the life cycle of Plasmodium has 3 stages. सबसे पहले स्पोरोगोनी होगी. स्पोरोगोनी, स्काइजोगोनी और गैमेटोगोनी. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज: स्पोरोगोनी, स्काइजोगोनी एंड गैमेटोगोनी. स्पोरोगोनी में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइड्स. Formation of sporozoites. This is occurring in mosquito. ये mosquito में हो रहा है. In mosquito. Schizogony, asexual reproduction. Asexual reproduction in liver cells. Gametogony, formation of gametes. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलेंगे गैमेटोगोनी इन ह्यूमन आरबीसी. ह्यूमन के आरबीसी के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेटोगोनी. सो नाउ अब मलेरिया लाइफ साइकिल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आप कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. ठीक है, चलिए. आफ्टर मलेरिया next we are going to discuss amoebiasis disease. ओके, पॉइंट्स नोट कर लीजिए. अमीबियासिस नेक्स्ट और एक प्रोटोजोआन डिजीज है अमीबियासिस, दैट वी विल डिस्कस. Amoebiasis. Amoebiasis is another protozoan disease. One more protozoan disease, amoebiasis. बताइए, अमीबियासिस में आपको बताना होगा टाइप ऑफ डिसीज, पैथोजन नेम, location of the pathogen, mode of infection, how this infection occur, and finally symptoms लिखना है आपको. चलिए, type of disease. It is what type of disease? It's a protozoan disease. प्रोटोजोआन डिसीज. ठीक है. देन पैथोजन, व्हाट इज द नेम ऑफ पैथोजन हियर? एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका. एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका इज द पैथोजन. ठीक है, एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका इज पैथोजन नेम. लोकेशन ऑफ द पैथोजन, वेयर इट इज लोकेटेड? It is located in colon. colon किसको बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन को बोलेंगे colon. लार्ज इंटेस्टाइन को बोलेंगे colon. Yes, very careful. Amoebiasis pathogen is located in colon. लार्ज इंटेस्टाइन में मिलने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं. Mode of infection, how it is spread from person to person. यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है. हाउस फ्लाई एक्ट एज वेक्टर which transmit
which carries pathogen from fecal matter of infected person into the food or water. जो पर्सन इन्फेक्टेड है अमीबियासिस डिसीज से, अमीबियासिस जिसको डिजीज हो गई है, वो पर्सन का अगर फीकल मैटर ओपन प्लेस में रहेगा, इफ दैट फीकल मैटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल में आ गया वो, if that person is passing his fecal matter in open place, no drainage system, डायरेक्टली ओपन प्लेस में वो अपना फीकल मैटर पास कर रहा है, वहां से क्या होगा, एक हाउस फ्लाई जो है फीकल मैटर से पैथोजन को कैरी करेगी इनटू दी फूड और वाटर. ओके, और ये कोई पर्सन ये फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर खा लेगा तो डिजीज डेवलप हो जाएगी. सिम्टम्स क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन. पहले तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी. कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है ना. कॉन्स्टिपेशन मीन्स डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ फीकल मैटर. कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी. अब्डोमिनल पेन है, अब्डोमिनल पेन है और क्रैम्प्स हैं. व्हाट इज क्रैम्प? वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, क्रैम्प्स. क्रैम्प्स का मतलब है इनवॉलेंटरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे स्टमक में, इंटेस्टाइन में. पेनफुल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, मसल ऑटोमेटिकली स्टमक में वगैरह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्रैम्प्स, पेन है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज म्यूकस विथ ब्लड क्लॉट्स कैन बी सीन इन स्टूल्स. स्टूल्स मतलब ये पर्सन के जो फीकल मैटर है, स्टूल्स विथ म्यूकस विथ ब्लड क्लॉट्स, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. जो पर्सन को ये डिजीज हो रही है अमीबियासिस डिजीज, उसका मेन आइडेंटिफिकेशन सिम्टम यही है, उसके स्टूल्स में उसका जो वेस्ट है, डाइजेस्टिव वेस्ट है, उसके अंदर म्यूकस है और ब्लड क्लॉट्स हैं. देयरफॉर दिस अमीबियासिस इज आल्सो कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री. डिसेंट्री बोल रहे हैं. डिसेंट्री इज लूज मोशन, लेकिन अमीबिक डिसेंट्री मतलब यहां पे स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड रहेगा, म्यूकस और ब्लड. मॉर्निंग ये क्लास में, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि अमीबियासिस जो डिजीज है ये डिसेंट्री है, अमीबिक डिसेंट्री है. बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होती है. दैट्स व्हाई नेम हियर इंडिकेट्स विथ अमीबिक डिसेंट्री. जस्ट डिसेंट्री लिखेंगे तो बैक्टीरिया भी हो सकता है. शिजेला, शिजेला जो है दैट इज बैक्टीरियल डिसेंट्री, राइट. ये अमीबिक डिसेंट्री है. अमीबियासिस कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका. चलिए नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर अमीबियासिस. द नेक्स्ट डिजीज नेम इज अस्कैरियासिस. Ascariasis. Name of the disease is ascariasis. First question, type of the disease. So this is what type of disease? Helminthic disease. Helminthic disease. That means it is caused by worm. Worm है, कुछ वर्म्स होते हैं, उनको हम हेलमिंथिक बोलते हैं. वर्म इन्फेक्शन है ये. टाइप हेलमिंथिक डिजीज. पैथोजन, व्हाट इज द नेम ऑफ पैथोजन हियर? अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बोल रहे हैं, राउंड वर्म भी बोल रहे हैं.
Next, location of the pathogen, where this pathogen is located in human body. Location कहां पर है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा ये पैथोजन आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन. लोकेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन. मोड ऑफ इन्फेक्शन, ड्रिंकिंग और ईटिंग ऑफ फूड, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और ईटिंग ऑफ फूड कंटामिनेटेड विथ अस्कैरिस एग्स. हो सकता है जो वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं अगर उसमें अस्कैरिस के एग्स हो जाएंगे तो एग के फॉर्म में ये एंटर हो जाता है, एग फॉर्म. कंटामिनेटेड फूड वाटर विथ अस्कैरिस एग्स, कंटामिनेटेड फूड वाटर विथ अस्कैरिस एग्स. हो सकता है उसके अंदर अस्कैरिस के एग्स हो, जो हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं या फूड खा रहे हैं उसके अंदर हो सकते हैं अस्कैरिस एग्स. अस्कैरिस के एग्स हो सकते हैं, पॉसिबल है. सो दैट्स वाई जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल मार्केट से परचेस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश कीजिए, घर पे लाने के बाद उसको बॉईल कीजिए फिर खाइए. ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई फ्रूट ले लिए और वहीं पे खाना शुरू कर दिए. हो सकता है उसके ऊपर अस्कैरिस के एग्स हो जाएं एंड दे एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी. सॉयल, वेजिटेबल, फ्रूट एंड वाटर. सॉयल, वेजिटेबल, fruit, water may have ascaris eggs. अब अगर कोई पर्सन है जिसको अस्कैरिस डिजीज है, इफ दैट पर्सन पासेस हिज फीकल मैटर इन ओपन प्लेस, तो वहां से अस्कैरिस के एग्स, थाउजेंड्स ऑफ अस्कैरिस एग्स फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से सॉइल में, सॉइल से वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, किसी और ह्यूमन के बॉडी में एंटर हो जाते हैं. सो दैट मीन्स मेन थिंग इज दे एंटर इन विच फॉर्म? एग फॉर्म. और एक बात यहां पे नोट करना है, व्हाट इज द लार्वा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा. लार्वा ऑफ अस्कैरिस, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ अस्कैरिस? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा. रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं इसको. ठीक है, चलिए. मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या हैं यहां पर? व्हाट आर द सिम्टम्स? सबसे पहले इसका जो मेन सिम्टम है, इंटरनल ब्लीडिंग होने वाली है. इंटेस्टाइन में वगैरह इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, वीकनेस. इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन, फीवर भी हो सकता है, और अनेमिया रहेगा. ये इन्फेक्टेड पर्सन को अनेमिया रहेगा. एंड इट ऑल्सो कॉजेस इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज. यस, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज इज द मेन सिम्टम ऑफ अस्कैरिस डिसीज. इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, यहां पे इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे स्पेशल, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज. क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम इन केस ऑफ टाइफॉइड डिसीज. कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पे बच्चे. इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज किसका सिम्टम है? अस्कैरियासिस का. इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज. इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन किसमें था? टाइफॉइड डिसीज में था. ओके, ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है. चलिए नेक्स्ट, आफ्टर दिस one more disease we are going to discuss under worm category. That is filariasis disease. Filariasis. Filariasis. Filariasis is another disease name. फाइलेरियासिस का और एक नाम है एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस बोल सकते हैं आप. फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं. इट्स ए हेलमिंथिक डिजीज, वर्म डिजीज. हेलमिंथिक मतलब वर्म, वर्म डिजीज है ये. वर्म इन्फेक्शन बोल सकते हैं आप.
Pathogen Wuchereria bancrofti. What is the name of pathogen here? Wuchereria bancrofti. This is one pathogen. Another pathogen is Wuchereria malai. There are two pathogen names we are writing here. Wuchereria, anyhow, Wuchereria याद रखेंगे तो चलेगा. Lymphatic vessels of lower limb. ये जो Wuchereria worm है ये कहां पर पाया जाता है? Lymphatic vessels of lower limb. ये पैर जो होते हैं ना, ये एलिफेंटियासिस डिसीज में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है एंड द लेग्स आर लुकिंग लाइक एलिफेंट लेग, इसलिए नाम भी एलिफेंटियासिस रखा गया है. मोड ऑफ इंफेक्शन, इट इज स्प्रेडेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो. थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो. फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो. देखिए मस्किटो में हमेशा बात की है तो फीमेल की बात करते हैं. फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो. व्हाई ओनली फीमेल्स आर बाइटिंग हियर? सो मस्किटोज में ओनली फीमेल्स आर बाइटिंग बिकॉज फीमेल मस्किटो नीड न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन रिच फूड, बिकॉज दे हैव टू ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स. इसलिए जो है वो ह्यूमन ब्लड चूज करते हैं प्रोटीन रिच फूड के लिए. इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन. थ्रू दी बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो से ये डिजीज स्प्रेड होगी. क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा यहां पर. सिम्टम में क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होने लगेगी धीरे धीरे. It takes 2 years, 3 years also. Chronic inflammation of lymphatic vessels in lower limbs. पैर में हो जाएगा पहले. Lower limbs. Even NCERT में एक पिक्चर भी है, जरा फोटो है, जरा देखिए उसको. Chronic inflammation of lymphatic vessel in lower limbs. नीचे जो पैर होते हैं वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाते हैं एलिफेंट लेग की तरह. क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल इन लोअर लिम्स. ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, टोटल डैमेज करेंगे ये इन जेनेटल ऑर्गन्स. इवन आप वहां पर देख सकते हैं द पर्सन इन्फेक्टेड विथ एलिफेंटियासिस डिजीज, फोटो में देख सकते हैं एनसीईआरटी में, उसके जेनेटल ऑर्गन्स, उसके सेक्स ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो गए हैं. ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, टोटल डैमेज ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स आल्सो. तो ये थे फाइलेरियासिस डिसीज के जो मेन पॉइंट्स हैं. एंड नाउ कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे. द लार्वा, नोट करिए, लार्वा ऑफ उच्चरेरिया को क्या बोल रहे हैं आप? Larva of Wuchereria, it is called microfilaria. Microfilaria. And this microfilaria causes, microfilaria, it is active during night time. Active during night time. That means during night time microfilaria larva move करना शुरू करते हैं बॉडी में, and they come to the blood vessels below the skin, so that mosquito comes, Culex mosquito comes, and along with that blood the larva enters into the mosquito body. Active during night time. माइक्रोफाइलेरिया डे टाइम में क्या करते हैं? सारे माइक्रोफाइलेरिया लेग में चले जाते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ लोअर लिम्ब में चले जाते हैं. बट नाइट टाइम आने के बाद क्या है, वहां से निकल के जनरल ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं. द पेशेंट गेट स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी पेशेंट को. ये एलिफेंटियासिस डिसीज है, क्यूलेक्स मस्किटो के थ्रू स्प्रेड हो रही है डिजीज.
Now one more disease is there, last one more, ringworm disease. रिंगवर्म डिसीज बोल के और एक है, रिंगवर्म डिसीज. लिखिए, रिंगवर्म इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? फंगल डिसीज. रिंगवर्म is what type of disease? Fungal. It's a fungal disease. It is caused by which pathogen? Microsporum trichophyton. Microsporum trichophyton. जरा सा केयरफुल रहिए बच्चों, यहां पर एग्जामिनर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन रखता है, और ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है. द ट्राइकोडर्मा आप कहां पे पढ़े हैं? ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वहां से आप साइक्लोस्पोरिन ड्रग निकालते थे फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स. ट्राइकोडर्मा इज डिफरेंट. ये ट्राइकोफाइटॉन है, एंड वन मोर इज एपिडर्मोफाइटॉन. 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 ये रहे पैथोजन के नेम्स. याद रहे, इट्स माइक्रोस्पोरम. एग्जामिनर क्या बनाएगा? ऑप्शन मैक्रोस्पोरम, MACRO. दैट इज रॉन्ग. मैक्रोस्पोरम नहीं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन रखते हैं. इट्स ए माइक्रोस्पोरम. ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन. What is the location of the pathogen? It is located in skin, nails, scalp. Skin, ये स्किन में मिलेगा आपको, नेल्स में मिल सकता है ये पैथोजन फंगस. ये स्कार्प. स्कार्प मतलब ये हेड. यहां पर भी ये रिंगवर्म फंगस ग्रो हो सकता है. स्किन में, नेल्स में, स्कार्प में, ग्रॉइन में. ग्रॉइन मतलब लोअर अब्डोमेन, वेयर हीट एंड मॉइस्चर इज प्रेजेंट ऑलवेज. सो हीट और मॉइस्चर. इन बिटवीन टोस, पैर के जो उंगलियां हैं ना, इन बिटवीन टोज, वहां पर भी ये फंगस मिल सकता है आपको. मोड ऑफ इंफेक्शन, हाउ इट इन्फेक्ट अदर पर्सन. शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स. शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, टॉवेल, कोम्ब. स्विमिंग पूल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन. जिस पर्सन को रिंगवर्म डिजीज है, अगर वो पर्सन जो टॉवेल यूज करेगा या स्विमिंग पूल यूज करेगा, वही अगर यूज करेंगे, सो द रिंगवर्म डिजीज में स्प्रेड. स्विमिंग पूल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन. सो दिस इज द मेथड ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ इन्फेक्शन. सिम्टम्स क्या है? इंटेंस ईचिंग. बहुत ज्यादा जो है ईचिंग शुरू हो जाती है स्किन के अंदर. इंटेंस ईचिंग और ड्राई. कंटिन्यूअस ईचिंग करते करते वहां पर ड्राई लीजन्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर. ड्राई लीजन्स. दिस इज द सिम्टम ऑफ रिंगवर्म डिसीज. ओके, तो यहां पर सारे डिजीज कंप्लीट होते हैं. ना वन मोर मस्कीटो के बारे में भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन किया है. एडिस मस्कीटो. एडिस मस्कीटो इज वेक्टर फॉर विच डिजीजेस? एडिस मस्कीटो इज वेक्टर फॉर डेंगू, येलो फीवर, है ना, चिकुनगुनिया. 3 डिसीजेस का जो है वेक्टर है एडिस मस्कीटो. नोट करेंगे, एडिस मस्कीटो मतलब तीनों में मस्कीटो आ गए यहां पर. एनोफिलिस आ गया है, क्यूलेक्स आ गया है, एडिस मस्कीटो. नेक्स्ट वन, एडिस मस्कीटो वेक्टर फॉर हाउ मेनी डिजीजेस? नंबर 1 डेंगू, सेकेंड वन डेंगू के बाद जो है चिकुनगुनिया,
चिकनगुनिया, and third one yellow fever also. ये तीनों डिजीज जो है एडिस मॉस्किटो वेक्टर है इन तीनों का. एंड डेंगू में क्या होता है जरा देखिए, ब्लड प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज होता है. ठीक है, एक करेक्शन है ये. एक्चुअली एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन है डेंगू में क्या होता है. सो वहां पर दिया है कि ब्लड प्लेटलेट इंक्रीज होते हैं ना, इंक्रीज नहीं होते वहां पर. डेंगू में क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है. अगर किसी का ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो गया, यूजुअली ब्लड प्लेट कितने रहना चाहिए, ब्लड प्लेटलेट 1,50,000 से 3,50,000 रहना चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. बट हियर इन केस ऑफ डेंगू ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. चलिए नेक्स्ट और एक पॉइंट यहां पर नोट करेंगे. थ्रो वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली एराडिकेटेड. थ्रो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, थ्रो वैक्सीनेशन smallpox completely eradicated. Smallpox eradicated. एक डिजीज थी स्मॉलपॉक्स, वो पूरा एरेडिकेट हो चुका है. आज जैसे न्यूबॉर्न बेबी वैक्सीन्स देते हैं हम उनको फॉर बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बेबी, फॉर इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बेबी. सो लाइक दैट यहां पर स्मॉलपॉक्स डिसीज कंप्लीटली एराडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम. Only one chapter, environmental issues. Through vaccination, smallpox completely eradicate हो चुका है. Next है biotechnology help in production of vaccines. Helps in production of vaccines. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. और थर्ड पॉइंट नोट करें, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस. ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज. अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज हो गई है तो एंटीबायोटिक बेस्ट ऑप्शन है. बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स यूज करके ट्रीटमेंट करेंगे. चलो अभी एक जनरल टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस. हाउ टू कंट्रोल द इंफेक्शियस डिजीजेस, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, अवेयरनेस, क्या क्या हम कर सकते हैं इंफेक्शियस डिसीज कंट्रोल करने के लिए. कंट्रोल ऑफ infectious diseases. As these diseases are spreading from person to person, तो infectious disease कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए. सबसे पहले पर्सनल हाइजीन. पहले अपने आप को क्लीन रखिए. कटिंग ऑफ नेल्स, ब्रशिंग, बाथिंग, ये पर्सनल हाइजीन में आ गए. पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हाइजीन में आप क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. आपके जो नेबर्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपसे. अगर आपका जो भी सॉलिड वेस्ट है, आपके किचन वेस्ट जो भी है, अगर ओपन प्लेस में, पब्लिक प्लेस में फेंक देंगे तो पब्लिक में डिजीजेस ज्यादा हो सकते हैं. पब्लिक हाइजीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ड्रिंकिंग ऑफ क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ये तो जनरल चीजें हैं ना, यही होता है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीज. डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर करना है. डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर,
अगर आपके विलेज में कोई वाटर डैम है तो वहां पे डिसइंफेक्टेंट्स डालते रहना है वाटर रिजर्वायर में. नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट करना है. So whatever the city waste is generated, that waste should not be released directly into the river. First sewage treatment is carried out. And the sixth one, proper drainage system for human waste disposal. So human waste, human fecal matter should not be on open place, should not directly contact with soil. Underground drainage system होना चाहिए. Contact with infected person in case of airborne diseases should be avoided. मतलब जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड है, ओके, उसके साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए. निमोनिया पेशेंट भी ऐसे ही है. निमोनिया क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीज है, diseases spread through air, should be avoided. Okay, next, avoid standing water. आपके नियर बाई हाउस कहीं पे स्टैंडिंग वाटर है, दैट इज द ब्रीडिंग स्पॉट ऑफ द मस्किटोस. तो ऐसे स्टैंडिंग वाटर के जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको अवॉइड कीजिए. अवॉइड स्टैंडिंग वाटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स. रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स. क्यों से उससे भी जो है स्टैंडिंग वाटर से भी वहां से भी डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं. दैट्स वाई रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्टैंडिंग वाटर, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स. यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स यूज करना चाहिए. यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स बिकॉज मेनी डिजीजेस आर स्प्रेडिंग थ्रू मस्कीटोस. तो केयर शुड बी टेकन. मस्कीटो नेट्स यूज कर सकते हैं आप. और गैम्बूसिया फिश, एग्जाम में पूछा जा सकता है. गैम्बूसिया फिश कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल मस्कीटो बॉर्न डिसीजेस. गैम्बूसिया फिश is a mosquito larvicidal fish. ये मस्कीटो के लार्वा खाती है. It is the best method to control mosquito population. Best method to control mosquito population. Okay, what is the best method to control mosquito population? Gambusia fish. So these are all the things, different things taken care for preventing the spread of infectious diseases from one person to another person. Even wire mesh, और एक मेथड बताया जा रहा है. यूज ऑफ वायर mesh for covering doors, windows, to prevent the entry of mosquitoes. To prevent the entry of mosquitoes in houses. To prevent the entry of mosquitoes in houses. जैसे हम बताते हैं प्रिवेंशन सुनते आ रहे हैं हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. So these are all prevention method to prevent the spread of diseases, infectious diseases. So we should take care.
प्रिवेंशन पहले लेना चाहिए, जैसे गैम्बूसिया फिश यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द मस्किटो पॉपुलेशन. इवन वायर मैश, you can cover the doors or windows with a wire mesh to prevent the entry of mosquitoes in houses. So in today's class we have completed all the common diseases in human. In next class we will discuss about immunity. Immunity is next part of the chapter. Okay, we'll stop here. Thank you.